Good morning, students. Today we are going to discuss one of the chapters of your syllabus, Discovering Tut. The full title, when I speak, Discovering Tut, the saga continues. So it is very important here, first of all, to understand the meaning of the title, first of all. Because this is a word tut, so it confuses when a child initially reads it and he actually cannot guess or judge what could it mean be, right? So in this chapter, first part of the title is discovering tut, means it is something about to discover the things. And what is tut? Tut, actually, this is the name of an Egyptian pharaoh who died many years back. Egyptian pharaoh, right? And the second part of the title is the saga continues. All right, saga means the ancient stories, legends, these are called saga. And continues means the story of discovering the Egyptian pharaohs like Tut is still continue, because so many mummies are still being found by many archaeologists. Actually, Egyptian pharaoh has a concern with the mummies. Mummies is a very common word we listen, and so many movies you might have watched regarding this. So mummies, actually, these are the dead bodies which are found in the Egypt country, where these dead bodies were kept with so many burial things, and they were actually embalmed. Embalmed का मतलब होता है बाम लगा के रखना. That type of material which was used by them, called resin. Resin material was used to keep the body safe for many years. And this is really surprising. Even the scientists today, they had not been successful to find out what type of material they used to keep this body safe, and it was found in its condition after many years. So that is still a mystery for all of us. But in this chapter, when I say the title Discovering Tut, the saga continues, what the writer wants to say, writer actually wants, first of all, he brings out the inherent desire of a human being. देखो, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर, वी आरंट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. In that chapter also, we discussed that how a man is desirous to visit the world, and he even does not hesitate to take risk in his life. And that the writer of that chapter, he had gone along with his family members, even the two small children. So human being, what is the problem with the human being? We cannot sit without adventure. We always want to learn the things, and we want to discover the things. And that's why archaeologists, they are still trying hard to find mummies. Now sometimes the children, they ask me, sir, what is the need of that discovery? Suppose you find out some dead bodies, so what will happen? We'll come to know the past of those people, how they had lived their life, and what type of history they had. We can come to know about from their dead bodies, and so many other things we can know about their lifestyle, right? So why do we want to know? Because we learned so many things from the past. So this chapter is regarding the adventurous nature of human being, first of all, because we take risk in our life. Why we take risk? Because we want to learn so many things. Another thing, we come to know about the historical past of our earth, we can say, or so many people, so many countries. Here this chapter is because regarding the people or the pharaohs who had been killed many years back. They had lived on the earth somewhere near the Nile River, because Egypt established near the Nile River, that these people had lived there, and how these people lived there, and how their mummies are still safe, and what type of
lifestyle they had, all these things are to be discovered by archaeologists. So one more thing which is linked with the mummies, which is very famous. Whenever we talk about mummy, so this also create a horror in our mind and heart. Why? Because different stories, different myths about the curse of the pharaohs are linked, right? हमने बड़ा नॉर्मली कभी सुना होगा कि डेड बॉडीज़ को वहाँ से मूव किया जाता है, तो कुछ ऐसे ऐसे कर्स होते हैं जो भी उसको डिस्टर्ब करता है इन बॉडीज़ को, तो they go to hell perhaps, and some type of epidemic या pandemic falls on the family members also. मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर करना चाहूँगा, बिकॉज क्योंकि जिस हम तूतन खातेन की टट की बात करने वाले, द फुल नेम ऑफ this person is Tutankhaten. He was the last heir of Egyptian kingdom, last heir of Egyptian kingdom. So when his body was discovered by Howard Carter, एक और भी उसके साथ लॉर्ड कार्नवन थे, and both of them they were keen interested in finding the dead bodies of Egyptian. हालांकि मेन क्रेडिट जो है वो इन मम्मीज़ को डिस्कवर करने का जो है वो किसको जाता है? थीव्स को जाता है. थीव्स आप समझते, चोर. And why the thieves they had discovered the bodies? Because these dead bodies were actually buried under the soil with a lot of things made up of gold, सोने से बनी हुई चीज़ों. Because they actually Egypt people, they were very rich people, and many articles were found of this costly metal gold. So in the temptation or in the greed of getting too much gold, so thieves actually had buried out these bodies. इनको निकाल डाला ग्रेवयार्ड से. तो ज़्यादा क्रेडिट तो उनको जाता है, बट आर्कियोलॉजिस्ट दे हैड डिस्कवर्ड द बॉडीज़ फॉर डिफरेंट पर्पस. उन्होंने अलग पर्पस के लिए ढूंढा, बिकॉज दे वांटेड टू नो देयर पास्ट, देयर हिस्ट्री, देयर लाइफस्टाइल and so many other things related to them. So they had a different purpose. So the title actually, Discovering Tut, the saga continues, tells us that human being always keeps himself busy in the discovery, and this legend, this story remains continuous because this is the inherent nature of a human being. So let us read from the chapter, the very this is page number from the book 22, where from the chapter starts. In the beginning, when we see this about this Tut, it has been told that he has been a teenager. Teenager का मतलब होता है जो आप लोगों की एज है. In this age when he was died, so he has been told, right? So the last heir of powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries, he was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of stone in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of a boyish pharaoh. अब यहाँ एक चीज़ और बात आती है सामने, हमारे सामने क्या बात आती है? इंटरफेरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. नो डाउट ह्यूमन बीइंग हैज़ अ desire to know the things. By the same time, technology is developing itself. टेक्नोलॉजी ने भी अपने आप को बहुत डेवलप किया है. पहले देखो एक्सरे मशीन होती थी, अब सीटी स्कैन होने लगा. सीटी स्कैन के बाद अब MIR भी हो गया है. तो टेक्नोलॉजी ने हमारी जो डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में तो हमारी हेल्प की ही है, बल्कि डिज़ायर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाया है. क्योंकि जैसे जैसे हमें ज़्यादा पता चलता जाता है किसी चीज़ के बारे में, तो उससे हम देन वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द थिंग्स द मोस्ट. हम और ज़्यादा जानना चाहते हैं. सो ये जो जिस फ़ैरो की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बिकॉज हिज क्योंकि उसकी जब डेड बॉडी जो है व्हेन इट वाज फाउंड, so because he was killed, rather it was assumed that he was murdered, and he was the last heir of his dynasty, right? So he was murdered, and he was a young boy.
ही वॉज अ यंग बॉय. सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेकुलेशंस वर मेड. स्पेकुलेशंस का मतलब होता है गेस लगाना, अंदाज़ा लगाना कि इतनी यंग एज में उसको मार दिया गया होगा परहैप्स, क्योंकि जो स्ट्रगल है किंगडम के लिए, जो स्ट्रगल है वो एंशिएंट टाइम से चल रहा है. व्हाट कुड बी द रीज़न, that cannot be found, but these were the speculations. So this was the first time actually when a mummy was being CT scanned. ये इम्पॉर्टेंट बात है, शायद इसीलिए ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में है कि इसी मम्मी को ही सिलेक्ट क्यों किया गया है. देखो इसमें इम्पॉर्टेंट बात एक तो ये सामने आती है, बिकॉज दिस मम्मी वॉज द लास्ट आयर ऑफ इजिप्ट डायनेस्टी. दिस वॉज द वन थिंग. ही वॉज यंग pharaoh, so many things, and this was the only mummy which was found in its real conditions. Almost in its real condition का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि as the thieves looted and robbed the mummies in the temptation of getting too much gold. So ये नहीं लूटा गया था, इसके साथ जो भी सामान रखा गया था जो गोल्ड का बना हुआ, चाहे वो ज्वेलरी है, एम्बुलेट्स हैं, और जो पोर्ट्स हैं, वो कंटेनर हैं, बहुत कुछ सामान था. इवन द कोफिन जिसके अंदर ये डेड बॉडी रखी जाती है, सो वो भी एज इट इज़ जो हैं वो देवर अवेलेबल. तो ये भी एक बड़ा सॉलिड रीज़न बनता है कि इसी मम्मी को स्कैन किया जाना, बिकॉज इट हैड नॉट बीन मच डिस्टर्ब. सो दिस मम्मी वॉज discovered in 1922, but after 80 years the time came when this mummy was being CT scanned. CT scanned क्यों किया जा रहा था? To collect the precise data. Precise data का मतलब होता है to get the accurate information about his death and so many other things which were linked to this pharaoh. इस pharaoh के साथ जुड़ी हुई बहुत सी बातों का पता लगाया जा सकता था, तो इसलिए इसको CT स्कैन किया जाना था. एंड दैट्स वाई the moment when this mummy was being CT scanned, that was not a small moment, it was happening first time, and so it becomes very important event. ये एक बड़ा ही important event था. लेकिन मम्मीज़ को डिस्टर्ब करने का मतलब जो है टू डिस्टर्ब सम pharaoh's curse. मैंने आपको बताया कि इसके साथ बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं जो हम लोग शायद बिलीव करते हैं या नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली. मॉडर्न एरा तो नहीं मानता है, बट नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ आर देयर कि जब मम्मीज़ को डिस्टर्ब किया जाता है तो इट मीन्स कि वो फ़ैरो जागेगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. वो कोई स्पिरिट का आना, घोस्ट का आना, या घर में बीमारी का आना, या किसी डेथ का आना, या सडनली पॉवर्टी आ जाना घर में, ऐसी कुछ चीज़ों को लिंक किया जाता है. इसलिए जब इस पर्टिकुलर तूतनखातेन की बॉडी को व्हेन इट वाज टेकन, ठीक है, फ्रॉम इट्स रेस्टिंग प्लेस, जहाँ पर इसको दबाया गया था, वहाँ से इसको निकाला गया उस सीमेट्री से, उस ग्रेवयार्ड से, और इसको CT स्कैन के लिए लेके जाना था इसको. जब 1922 के बाद 80 इयर्स के बाद करीब अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज़ 5 जनवरी 2005, राइटर हमें बताता है 8 इयर्स के बाद. तो व्हेन दिस इज़ बीइंग स्कैन, जब इसे स्कैन किया जाना है, तो राइटर क्या बताता है कि जो एटमॉस्फियर था, जो वेदर था, वो भी उस कर्स जैसी सिचुएशन को क्रिएट करता है, बिकॉज द क्लाउड्स हैड स्कडेड. एकदम से स्काई जो है इट वाज फिल्ड विद डार्क क्लाउड्स, बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते थे. तो ऐसा एकदम से माइंड के अंदर ऐसा इंप्रेशन जाता है कि परहैप्स वी आर डिस्टर्बिंग द मम्मी, सो समथिंग ओमन, बैड ओमन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, कुछ बुरा होने वाला है. तो वो क्लाउड्स का एकदम से आना, दैट बिकम्स द इंडिकेशन शायद कुछ ऐसा बुरा होगा. क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ये सब लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, तो दे वर रेडी टू स्कैन द बॉडी. वो उस बॉडी को स्कैन करना चाहते थे, बिकॉज दे वांटेड टू नो अबाउट इजिप्ट पीपल, द pharaohs, their lifestyle and how they had lived, they passed their life, so many other things linked to them. So this was very important event, because to study the mummy means to study the past which had existed 3,300 years almost back. देखो 3,300 years back, इतने बैक पास्ट के बारे में जानना, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव था इस तूतनखातेन की बॉडी को CT स्कैन करने का, राइट. तो आफ्टरनून तक जो है
आफ्टरनून तक जो सिचुएशन थी, मैं पेज नंबर 23 पर आ रहा हूँ। पेज नंबर 23 से हम फिर आगे बढ़ते हैं, जब चैप्टर पर आ जाते हैं। तो आफ्टरनून तक बहुत से टूरिस्ट जो ऐसे इस तरीके के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, दे हैड कम देयर। और देखने वाली ये बात थी कि द चैम्बर, जिस चैम्बर में ये बॉडी रखी गई थी, इट वाज 26 फीट, ठीक है। और उसको वहाँ से बड़े अच्छे ढंग से रखा गया था। और जो चैम्बर की जो वॉल्स हैं, उन वॉल्स के ऊपर म्योरल्स होता है। म्योरल्स का मतलब बहुत ही अच्छा आर्टिफैक्ट्स किया गया है, अच्छे ढंग से उसको डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। और उसका जो फेस था, गिल्डेड फेस, मतलब इट वाज कवर्ड विद समथिंग लाइक द शेप ऑफ हिज फेस, बट विद द हेल्प ऑफ गिल्ड, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गोल्ड से भी, द थिंग्स वर मेड अप ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो कुछ जो गेस्ट या जो विजिटर वहाँ पर आए हुए थे, दे वर रीडिंग स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है रिलीजियस बुक्स। वो रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हैं, दे आर इंटरेस्टेड, बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द pharaoh's curse in this matter, because the mummy was being disturbed. So they were thinking that something bad fortune or misfortune would happen to them. So they were reading some scriptures, कुछ religious पढ़ना ताकि कुछ बुरा ना हो. So these type of reactions were there from the visitors who had come there to see the mummy, जो मम्मी को देखने के लिए वहाँ पर आए हुए थे. So they were actually trembling because they had expected that something like death, something bad, some misfortune would fall upon them who were trying to disturb the body. So we'll see through the chapter ki something happened to them or not. Thereafter, in this chapter from the page number 23, the writer tells us that actually in 1922 this mummy was discovered by हॉवर्ड कार्टर ने सबसे पहले एक्चुअली इसको डिस्कवर किया था. यहाँ एक और भी नाम है जो यहाँ चैप्टर बुक में तो नहीं मिलता है, बट ऐसा कहीं और से पढ़ने पर मिलता है कि एक और पर्सन था हॉवर्ड कार्टर के साथ, जिसे लॉर्ड कार्नवन कहा जाता है. तो दीज टू पीपल, दे वर टू मच इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग और डिगिंग अप द मम्मीज़ को निकालने का काम इन्होंने किया. बट दीज वर द आर्कियोलॉजिस्ट थे. उनका पर्पस रॉबिंग का, लूटने का नहीं था. दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो कार्टर साहब ने क्या किया, बिकॉज ही वाज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, तो 1902 में 2 साल के बाद जब जा कर के उसको ये पर्टिकुलर मम्मी जो तूतनखातेन की मम्मी है, ये उसको मिलती है. तो टू हिज सरप्राइज इट हैज़ नॉट बीन रैनसैक. एक वर्ड आप पढ़ेंगे, रैनसैक का मतलब होता है लूटा नहीं गया था इसको. तो इसकी काफ़ी सारी कंडीशन जो हैं वो सेम मिलती हैं. अब एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर, व्हाई दीज पीपल, जो इजिप्ट पीपल थे, वो डेड बॉडी के साथ, आप यू वॉन्ट बिलीव परहैप्स कि खाने पीने का सामान, वाइन वगैरह, जो फ़ैरो, वट एवर द फ़ैरो दे यूज़ टू यूज़ इन देयर ओरिजिनल लाइफ, जो अपनी लाइफ में वो मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी सामान वो यूज़ किया करते थे, ऑल दोज थिंग्स वर केप्ट इन द ग्रेवयार्ड. उस बरिड चैम्बर के अंदर वो सारे, उसके अंदर रखा जाता था वो सारा सामान. क्यों रखा जाता था? दिस इज़ अ क्वेश्चन. बिकॉज दे बिलीव्ड इन रेजरेक्शन. एक वर्ड आप पढ़ेंगे, रेजरेक्शन का मतलब होता है लाइफ आफ्टर डेथ. बिकॉज दीज पीपल, दे बिलीव्ड दैट there is a life after death, and the person who had died, he would be using all these things after his death. And that's why, thinking that, they used to keep all these things along with the dead body. उस बॉडी के साथ वो सारा सामान जो है वो रख दिया जाता था. तो रेजरेक्शन का मतलब आप समझेंगे, ये एक तरीके का ब्लाइंड फेथ भी कह सकते हो, बैकवर्डनेस कह सकते हो, ठीक है. तो ऐसा उनका मानना था, बिकॉज दे वर एंशियंट पीपल. अब इसके साथ, जो बॉडी के साथ जो फिनरेरी ट्रेजर मिला, फिनरेरी का मतलब क्या होता है? द लास्ट टाइम, जो एक रिचुअल होता है किसी के मरने पर, जो भी एक प्रोसेस फॉलोअप किया जाता है, तो वो फ्यूनरल प्रोसेस होता है. तो फ्यूनरेरी ट्रेजर किसको कहा गया? द ट्रेजर विच वाज फाउंड
विद द बॉडी, जो बॉडी के साथ जो ट्रेजर मिला, वो ट्रेजर क्या क्या, कुछ नाम यहाँ पर गिनाए हैं कार्टर साहब ने जब इस कॉफिन को खोला था। सो ही फाउंड अ श्राउड, एक श्राउड इज़ अ शीट विच इज़ यूज टू कवर द डेड बॉडी। फिर गार्लैंड जो है विलो और ऑलिव लीव्स की, कुछ लीव्स की बनी हुई, विलोस की लीव्स की, वाइल्ड सेलरी, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स। लोटस पेटल्स मिलते हैं वहाँ पर, कॉर्न फ्लावर्स मिलते हैं, और ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि परहैप्स इट वुड हैव बीन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल व्हेन द फैरो हैड डाइड, क्योंकि ये सब प्लांट्स और फ्लावर्स मोस्टली जो हैं कब ये ब्लूम करते हैं, सो मार्च अप्रैल के मंथ में ब्लूम करते हैं। तो ऐसा एज्यूम किया गया कि वो सब फ्लावर्स का वहाँ होना इंडिकेट करता है कि शायद उसकी डेथ जो है उन 2 महीनों में से किसी एक महीने में किसी दिन रही होगी। तो ऐसा उसकी चीज़ों से, जो साथ में चीज़ें मिलती हैं उससे। फिर अब बात आती है एक रेसिन्स की, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। दिस इज़ अ टाइप ऑफ मटेरियल विच इज़ यूज्ड, एक तरीके का बाम होता है जो बॉडी के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे बॉडी काफ़ी सालों तक सेफ रहती है। वो रेसिन्स तो मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट अभी तक नहीं पता लगा पाए कि वो रेसिन किस चीज़ का बना रहता था, राइट। तो वो रेसिन जब हॉवर्ड कार्टर ने जब इस बॉडी को फाइंड आउट किया फर्स्ट टाइम, तो अब उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो जाती है कि जो रेसिन उसके ऊपर लगा हुआ था, it has become so hard that it has become difficult for Carter to remove the body from its coffin. वो चिपक गया था, it was stuck, the body was stuck to the coffin. अब वो निकल ही नहीं रही थी बॉडी, और इतनी सॉलिड जो है वो उसके साथ स्टक है, तो all his efforts had gone failed. उसकी इवन सारे उसके जो कोशिश करता है, इवन उसने ये भी किया, क्योंकि आपको पता है इजिप्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती थी, वहाँ पर हॉट वेदर रहता था, तो उसको लगा कि शायद ये रेसिन जो है उसमें हॉट वेदर में मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेल्ट होने से उसके लिए उस बॉडी को रिमूव करना इजी हो जाएगा। सो ही केप्ट द बॉडी इन द ओपन हॉट वेदर एट द टेम्परेचर 149 डिग्री। मैं अब पेज नंबर 25 पर पहुँच गया हूँ, पेज नंबर 45, सॉरी 45 नहीं, दिस इज़ 25, दिस इज़ 25 पेज पर हम ये लाइंस पढ़ते हैं कि व्हेन द बॉडी वाज केप्ट एट द टेम्परेचर 149 डिग्री बट टू हिज सरप्राइज रेसिन बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ। अब उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि वो उस बॉडी को कैसे निकाले, बिकॉज ही वांट्स टू स्टडी, ही वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसे इसको स्टडी करना है, उसके लिए उसको बॉडी को निकालना ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली आप एक टर्म पढ़ेंगे चीसल अवे, CHISELL। देखो नाउन कहते हैं इसको, तो हम पंजाबी में मैं अगर आपको बताना चाहूँ या हिंदी में, तो छेनी एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू कार्व द स्टोन। देखो एक छेनी लेकर के एक जो आर्टिस्ट होता है वो एक बहुत स्टोन को एक शेप देता है, मूर्ति बनाता है, तो वो जो एक इंस्ट्रूमेंट वो आयरन का बना हुआ वो यूज़ करता है, टुक 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 करके, वो जिस तरीके से, उसको बोलते हैं चीसल। तो यहाँ वर्ब में यूज़ किया गया चीसल अवे। चीसल अवे मीन्स व्हेन रेसिन डिड नॉट मेल्ट, तो अल्टीमेटली ही हैड टू चीसल अवे द बॉडी, तो उसको वो छेनी से छील के वो बॉडी जो है वो पीसीज में उसको बाहर निकालनी पड़ी, एंड इट वाज कट फ्रॉम द मेन जॉइंट्स ऑफ द, शायद ये पार्ट अलग किया, यहाँ शोल्डर से अलग किया, ऐसे जो मेन पीसीज थे, तो इस पीसीज में उसको जो है वो निकालना पड़ा, क्योंकि उसे उसको स्टडी करना था। तो अगर कार्टर से अगर इस तरीके में कोई कहता है कि आपने इस बॉडी को ऐसे पीसीज कट कर दिए उसके और ऐसा, तो वो अपने डिफेंस में जो है वो यही कहता है कि अल्टीमेटली ही हैड नो चॉइस। तो उसको बॉडी को कॉफिन से निकालने का, लास्ट कॉफिन से निकालने का और कोई वे आउट नहीं था, एंड दैट्स वाई ही हैड टू चीसल वे द बॉडी। तो अब यहाँ पर हमें जो है जो बात फ़ैरोज़ के बारे में पता चलती है, क्योंकि बहुत सारा जो सामान वहाँ पर, जो कंटेनर मिलते हैं, जो पोट्स मिलते हैं, जो ज्वेलरी मिलती है, ऑल दीज थिंग्स वर मेड अप ऑफ गोल्ड।
क्योंकि फ़ैरो लोग जो थे देवर रिच पीपल, तो गोल्ड की बनी हुई सारी चीज़ें हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो थीव्स हैं वो दे हैड लूटेड मैनी मम्मीज़, उन्होंने बहुत सारी मम्मीज़ को लूटा था। तो यहाँ और भी बहुत सारे आर्टिकल्स के नाम दिए हैं, जैसे कि कॉलर्स, यहाँ पर नेकलेस की बात की गई है, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, एप्रन, सैंडल्स, शीट्स, ठीक है। शीट्स जो हैं फिंगर्स पर डालने के लिए या टोज़ पर डालने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वर मेड अप ऑफ गोल्ड, सब चीज़ें जो हैं वो गोल्ड की बनी हुई हैं। तो ये उनका एक लाइफस्टाइल था, मीन्स फैबुलसली दे हैड लिव्ड देयर लाइफ, बड़ी रिच लाइफ फ़ैरोज़ लोग या इजिप्ट के लोग जिया करते थे। अब राइटर बताता है यहाँ पर थोड़े टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को भी साथ में पिकअप करके चलता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होती गई, जैसे 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया, तो उस टाइम में उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था उसको स्टडी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 40 इयर्स के बाद जो है, 40 इयर्स के बाद क्योंकि एक्सरे मशीन आ गया था, तो एक्सरे मशीन से वो उस मम्मी को थोड़ा उसके फ़ोटोज़ ले करके उसको और ज़्यादा स्टडी कर सकते थे। ये 1968 का मैटर आ जाता है, 1922 के बाद 1968, और जो मैंने आपको पहले बताया 2005 वो सिटी स्कैन का टाइम है। आप लोग टाइम पीरियड याद रखेंगे, 1922 हॉवर्ड कार्टर हो जाता है, हॉवर्ड कार्टर के बाद एक्सरे किया जाता है 1968 में, और 2005 में जब ये सिटी स्कैन इसका किया जाना है, विच बिकम्स द इम्पॉर्टेंट इवेंट, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है। और क्योंकि बार बार इसी मम्मी को ही क्यों स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि ये अपनी काफ़ी सारी चीज़ों के साथ रियल कंडीशन में अवेलेबल थी, तो इसको स्टडी किया जा रहा था। अदरवाइज मैनी अदर मम्मीज़ ऑल्सो हैड बीन फाउंड, बट दोज मम्मीज़ हैड बीन लूटेड एंड रॉब्ड बाय मैनी थीव्स, वो लूट ली जाती थी, तो रियल कंडीशन में अवेलेबल नहीं थी। तो 1968 में राइटर बताता है कि इसको एक्सरे भी किया गया। उस एक्सरे की रिपोर्ट से जो है यहाँ से पता चलता है कि उसकी जो ब्रेस्ट बोन है या फ्रंट जो रिब्स थी, यहाँ चेस्ट के ऊपर की जो रिब्स हैं, ये कुछ ना कुछ मिसिंग थी। तो ये मिसिंग थी, तो शायद यहाँ पर अटैक किया गया होगा, स्पीयर से, भाले से मारा गया होगा, तो इसीलिए उसका मर्डर किया हो गया। ऐसे इमेजिन, ये स्पेकुलेशंस हैं जो किए गए कि शायद यहाँ पर चोट लगने से उसकी डेथ हुई होगी। तो एक्सरे मशीन के बाद जब सिटी स्कैन की बात आती है, सिटी स्कैन की फुल फॉर्म को हम कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो क्योंकि सिटी स्कैन ज़्यादा माइन्यूटली जो है हमें फोरेंसिक रिपोर्ट दे सकता है इसकी जो मम्मीज़ के बारे में, तो वो ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ हम ये भी सीख रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होती है, तो वी लर्न एंड वी ट्राई टू नो द थिंग्स मोर, हम चीज़ों को और जानना चाहते हैं और बहुत सी और चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो अब लेकिन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के बावजूद भी कि ये क्वेश्चन फिर भी एक बिगेस्ट क्वेश्चन ही था कि हाउ डिड ही डाई, कि उसकी डेथ कैसे हुई होगी। ये दीज वर द स्पेकुलेशन, सिर्फ रिब्स का मिसिंग होना, इट डिड नॉट इंडिकेट एग्जैक्टली कि व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द मैन, कि हुआ क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए जो है वो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो वो सिटी स्कैन मशीन से उसके डिफरेंट जो है एक्सराज जो है, माइन्यूट एक्सराज जो हैं वो लेना चाहते हैं, 3 डायमेंशनल। तो आप लोग समझते हैं, आजकल तो सभी को पता है सिटी स्कैन क्या होता है, राइट। तो जो क्योंकि किंग टट जो है, हिज डेथ वाज अ बिग इवेंट और ही वाज अ फ़ैरो एंड दैट्स वाई ही वाज ट्रीटेड इन अ रॉयल मैनर। क्योंकि फ़ैरो था, किंग था, तो रॉयल मैनर में उसको ट्रीट किया गया था। even the event of his death was treated in a very royal manner, तो उसकी डेथ को भी हम जो है इम्पॉर्टेंट वे से मानते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो पास्ट के बारे में जो राइटर हमने डिटेल देता है कि इनकी एग्जैक्टली कहानी कहाँ से वो हमें शुरू करता है। तो ही टोल्ड कि टट्स के फादर या ग्रैंडफादर, ये स्पेकुलेशंस हैं कि टट के जो फादर या ग्रैंडफादर, जिनको अमेंटेप III कहा जाता है, अमेंटेप III, ठीक है, ही वॉज अ पावरफुल किंग, पावरफुल फ़ैरो। किंग वर्ड मैं वैसे गलत ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ैरो एक्चुअली इनको कहा जाता। तो फ़ैरो
इक्वल टू किंग, राइट। तो फेरोज थे और 4 डिकेड्स बैक एट द हाइट ऑफ 18th सेंचुरी की डायनेस्टी का गोल्डन टाइम था, व्हेन दीज पीपल दे हैड रूल्ड अमेंटप III। जो तूतनखातेन जिस मम्मी की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लास्ट अय्यर कह रहे हैं डायनेस्टी का, तो उनकी जो पास्ट में जाते हैं तो उनके ग्रैंडफादर से हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप में आते हैं क्वेश्चन हु वाज अमेंटप III, तो ही वाज अ पावरफुल किंग, राइट। तो ही हैड रूल्ड हिज कंट्री फॉर 4 डिकेड्स, 40 ईयर्स तक उसने अच्छे से दैट हैड बीन अ वेरी गोल्डन टाइम। अमेंटप III का आगे जो सन, जो नेक्स्ट सक्सेसर था, फिर जो उसने इस अपना जो है रूलिंग किया, तो उसका नाम आता है अमेंटप IV। अमेंटप IV जो है, अमेंटप IV का जो रूलिंग टाइम था, दैट हैड बीन वेरी स्ट्रेंज टाइम इन द हिस्ट्री के अंदर अमेंटप IV का जो ड्यूरेशन, जो टेन्योर था जब उन्होंने रूलिंग किया, ठीक है। हम अब बेटे चैप्टर को हमें ना यही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल कुछ डिस्टरबेंस बता रहा है। अब हम इतना ही चैप्टर करेंगे, नो प्रॉब्लम। जो हम अमेंटप III, अमेंटप IV के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है। आई शैल बी इन्फॉर्मिंग दैट आई होप you would have understood what I have told you. So this is about the mummies and the last year of pharaohs, Egypt pharaohs, right, तूतनखातेन। तो एक बार ब्रीफ में फिर से शुरू करते हुए हम अपनी क्लास को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मोबाइल कुछ सिग्नल दे रहा है, शायद कोई ट्रबल है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।